الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مجھے حقیقت میں یاد نہیں ہے کہ کہاں سے پڑھنا ہے یا کہاں تک ہم پڑھے تھے المفعول المطلق. جی، تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ اسم مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے. ہر اسم منصوب یا مجرور یا منصوب ہوتا ہے، لیکن کچھ اسماء ہیں جن کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ اسماء ہیں جن کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں. اب وہ کون سے اسماء ہیں جن کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کون سے اسماء ہیں جن کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ جو سبق شروع ہوا تھا یہ ایک لسٹ ہے آپ کے سامنے، قائمہ دے دیا گیا ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ سارے قواعد آپ کے سامنے ہوں. تقریباً یہ سبق ختم ہونے تک ایسے ہی ہے کہ مرفوعات کون کون سے ہیں، وہ کون سے اسماء ہیں جو ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہم پڑھنے سے بتا سکتے ہیں کون کون سے اسماء ہیں. چلے مرفوع حضرات بتائیں، مرفوعات دیکھیے بتا رہے ہیں جلدی جلدی سے. فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مفعول ہوتا ہے. اچھا، فاعل مرفوع ہوتا ہے. جی، انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. ان کی خبر مانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، مانا کا فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور ایک اور ہوتا ہے منادى مفرد مرفوع ہوتا ہے. اور مبتدا خبر، مبتدا خبر بول دیا آپ نے. ٹھیک، منادى مفرد ہو تو مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک، اس میں نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں. تو اب خواتین بتائیں کہ منصوب اسماء جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں وہ کون کون سے ہیں، کون کون سے اسماء منصوب ہوتے ہیں. یہاں تک ہم نے پڑھے تھے. چلیں ٹھیک ہے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مفعول المفعول المطلق. مفعول کسے کہتے ہیں یہ تو بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. مفعول وہ اسم جس پر کسی کام کا ہونا معلوم ہوتا ہے، یہ تو مفعول بھی تھا. اس کے بعد ماشاءاللہ جیسے جیسے آپ لوگوں کی عمر بڑھتی گئی کچھ اور مفاعیل ہم لوگوں نے پڑھے. جیسے مفعول فیہ ہم نے پڑھا جس میں ظرف ہوتا ہے. مفعول لاجلہ ہم ظرف یعنی ظرف زمان ظرف مکان، وہ مفعول جو وقت یا جگہ بتائے مفعول فیہ ہے. اسی طرح مفعول لاجلہ ہم نے پڑھا، مفعول لاجلہ میں سبب، وہ مفعول جس کے ذریعے سبب کا پتہ ہوتا ہے مفعول لاجلہ ہی ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا مفعول معہ، وہ مفعول جس میں معیت کا پتہ چلتا ہے. جیسے سرت انا والجبل، تو واو معیت کے ساتھ وہ مفعول آتا ہے، یہ مفعول معہ ہوتا ہے. ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں مفعول مطلق. مفعول مطلق اس تین سبب ہوتے ہیں. مفعول مطلق کیوں لایا جاتا ہے، اس کے تین سبب ہیں. اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں یہ اس کو حرف اخیر مت سمجھیے گا. کہ حقیقہ یہ جو کورس ہیں کافی مختصر کورس ہے، شارٹ کورس ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اسی لیے قواعد بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا. ورنہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر قاعدے کی ایک چابی میں آپ کو دوں گا، آپ اس کے ذریعے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں. جیسے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مفعول مطلق کیوں لایا جاتا ہے. مفعول مطلق کیوں لایا جاتا ہے، اس کے تین سبب ہیں. ایک سبب مفعول مطلق کا، مفعول مطلق پہلا سبب توکید ہے، توکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے نصرت نصرا، نصرت نصرا، یہ جو مفعول ہے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، المفعول المطلق. یہ تاکید کے لیے آیا ہے، نصرت نصرا. یا پھر آپ کہیں ہربت، میں بھاگا، بہت تیز بھاگا، ہربت ہروبا. تو ایک تو توکید کے لیے آتا ہے مفعول مطلق. وہ مفعول جو معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے اب اس مفعول کو کہیں گے
ये मफऊल मुतलक है। कुरान में ऐसी कोई ज़रब तो ज़रबन। हाँ, कुरान के अंदर इसके बहुत सारी मिसालें होंगी। दक्कन दक्का से बहुत सारी मिसालें होंगी। सफ़न सफ़ा दक्कन दक्का है। एक मकसद दूसरा सबब है या दूसरी वजह मफऊल मुतलक को जो लाते हैं वो है नौइयत बयान करने के लिए। नौइयत कि काम की नौइयत क्या थी। मिसाल के तौर पर जलस्तु। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं आपको, जरा सा फौरन नोट करने से पहले। मफऊल मुतलक में जो पहला सबब मैंने बताया ताकीद के लिए, तौकीद है। तौकीद के लिए जो मफऊल मुतलक लाया जाता है उसका तस्निया या उसकी जमात भी बना सकते हैं आप। जैसे आप नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं नसरतु नसरैनी, नसरतु नसरातिन, या ऐसे जमा नहीं बना सकते, वो मुफरद ही आएगा। ठीक है, वो मस्दर लाएंगे मुफरद ही आएगा। लेकिन जो दूसरा सबब है वो है नौइयत। नौइयत ये इसका अलबत्ता आप तस्निया ला सकते हैं, इसकी जमा ला सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ जलस्तु, देखें गौर करें, जुलूसैन, यहाँ देखें जुलूसैन सईद व अहमद। जलस्तु जुलूसै सईद व अहमद, क्या तर्जुमा करेंगे इसका? मैं बैठा हूँ दो और सईद के बैठने की तरह। नौइयत बयान कर रहे हैं यहाँ पर। जुलूस है तस्निया है ना, दो जुलूस। हाँ, असल में है जुलूसैनी है वो। जी जी, नून हज़फ हुआ मुदाफ बनने की वजह से। तो यहाँ पर नौइयत बयान कर रहे हैं। तो दूसरा मकसद है मफऊल मुतलक का सबब नौइयत है। किस्म, हाँ, कैसे बैठा, किस किस्म से बैठा। और कोई मिसाल देना है, मसलन अद्दबतु तअदीब अल-उस्तादी, अद्दबतुहु तअदीब अल-उस्तादी। अद्दबतुहु, मैंने उसको अदब सिखाया उस्ताद के अदब सिखाने की तरह। अद्दबतुहु तअदीब अल-उस्तादी। या फिर उस्ताद कहता है अद्दबतुहु तअदीब अल-अबी, कि बाप के अदब सिखाने की तरह मैंने उसको अदब सिखाया, बाप बनकर मैंने उसकी तरबियत की। समझ रहे हैं जी? फिर मैंने ये वाली जुलूस है, मुझे पहले ये मिसाल देना चाहिए था, बाद में ये कि मैंने ये इसलिए ये तस्नियात यहाँ पर जिक्र किए, ये बताने के लिए कि अल-मफऊल मुतलक अगर नौइयत बयान करने के लिए है तो फिर भी वो तस्निया उसकी जमा बना सकते हैं। वाहिद भी आ सकता है। हाँ, वाहिद भी आ सकता है, मुतलक में नहीं बना सकते बोले। अल-मफऊल मुतलक अगर तौकीद के लिए हो जी, तौकीद में तो नहीं। अल-मफऊल मुतलक वो टेंशन मत लें आप लोग, तस्निया जमा का छोड़ दें, पहले वाहिद का सीख लें। ठीक है, छोड़ ही दें तस्निया जमा का, नहीं बोलूंगा इसके बाद, तो बस वाहिद का सीखना, इसको छोड़ दें। जलस्तु जुलूस हामिद, ठीक है, जलस्तु जुलूस हामिद, हामिद के बैठने की तरह मैं बैठा। ठीक है, बस इसको छोड़ दें, कैंसिल समझ आ गए तो हम ठीक है। अद्दबतु तअदीब अल-अबी या अद्दबतु तअदीब अल-उस्तादी, कि उस्ताद के अदब यानी तादीब की तरह, उस्ताद के अदब सिखाने की तरह मैंने उसको अदब सिखाया। हाँ, यह तादीब ये मफऊल मुतलक है। सबब क्या है, किस लिए आया है? नौइयत बयान करने के लिए, नौइयत बयान करने के लिए आया है। ठीक है, तो पहला सबब था तौकीद और दूसरा सबब था नौइयत, और तीसरा सबब अल-मफऊल मुतलक जो लाया जाता है उसका तीसरा सबब है अदद, अदद बयान करना, अदद बयान करना। मैंने मारा तो ज़रबतैनी, फिर मैं तस्निया लिख रही हूँ। इससे ये भी पता चल गया है कि इसका भी अगर अदद बयान करना है, जाहिर सी बात है अदद बयान करना है, तो तस्निया जमा तीनों भी आ सकते हैं। ज़रबतु ज़रबतन, मैंने एक ही मार मारा, या ज़रबतु ज़रबतैनी या ज़रबतु ज़रबातिन, खूब मारा, ये अदद बयान करने के लिए।
ضربتن یا ضربت ضربات جمع کیا بول ہاں ثلاث ضربات 3 مار مارا میں نے 3 مار ماری یعنی میں نے مار ماری تو یہ مفعول مطلق ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مفعول مطلق اس کے 3 سبب ہیں 3 وجہ ہیں کبھی مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے کبھی المفعول المطلق نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کبھی المفعول المطلق عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے سمجھے آپ لوگ عدد معدود عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے عدد جی نمبر یعنی جہاں ایک جیسے دو ورڈ کہیں عربی لغت میں ہوں گے تو پتہ چل جائے گا ہاں یہ مفعول مطلق ہے لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ کہاں پر عدد بیان کرنے کے لیے آئے کہاں پر نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے کہاں پر توکید کے لیے آئے ہیں وہ سیاق و سباق سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا یہ اور یہ منصوب ہوتا ہے اہم چیز یہ ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے ٹھیک شاہد مفعول سارے کے سارے منصوب ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے ٹھیک اس کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ سبق میں اہم چیز وہی ہے سبق کے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہے جو ابھی بتائی گئی مفعول بتا رہے ہیں کہ یہ منصوبات میں سے ہیں مفعول تو منصوب ہی ہوتا ہے ہاں پھر بھی یاد رکھ لیں پھر بھی بھول جاتے ہیں نا آپ لوگ مفعول مطلق جو ہے نا وہ بھی منصوب ہوتا ہے یہ منصوبات کی لسٹ میں ہے اچھا اس کے بعد ہے حال بالاختصار میں ذکر کروں گا آپ کو پوری تفصیل سے نہیں ورنہ حال بھی کافی مفصل ایک سبق ہے ٹھیک ہے مختصر یہ ہے اس ایک مثال کو دیکھ کر آپ سمجھیں ورنہ بہت کنفیوز ہوں گے آپ سب اس ایک مثال کو دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے کہ حال کا کیا مطلب ہے جدی یصلی قاعدا جدی یصلی قاعدا کیا ترجمہ کریں گے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ حال ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو کلمہ ہے قاعدہ یہ حال ہے حال کا کیا مطلب ہے حالت حالت یہ زمانہ حال نہیں ہے حال حالت کے معنی میں ہے یہ حالت بیان کرتا ہے کبھی فاعل کی یہ حالت بیان کرتا ہے کبھی مفعول کی حال یہ دراصل حالت ہے حالت کے معنی میں ہے وہ زمانے حال اور مستقبل والا حال نہیں ہے حال حالت کے معنی میں ہے یہاں پر جو لکھا ہے حال یہ حالت کے معنی میں حال یہ کبھی فاعل کی حالت بیان کرتا ہے اور کبھی مفعول کی تو جس کی حالت بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب الحال ہاں نہیں حال منصوب ہوگا سنیں حال منصوب ہوگا حال منصوب ہوگا یہاں پر مثال ہے جدی یصلی قاعدا کس کی حالت بیان کر رہا ہے یہ فاعل یہ حالت کس کی ہے فاعل کی جدی کی حالت ہے لیکن یہاں پر ہم کیا بولیں گے فاعل یہاں کہاں ہے یہ فاعل ہے اچھا واپس جانا پڑے گا مجھے ضمیر فاعل ہے یا کی مجھے بتائیں فاعل کہاں ہے اس پورے بندے میں جدی اچھا جد فاعل ہے جدی نہیں جد فاعل ہے آپ کیا کہیں گے جد یا جدی جدی آپ کچھ کہیں گے جدی فاعل ہے خواتین کیا کہہ رہی ہیں یصلی میں ہوا کہ ضمیر فاعل ہے کیسے آپ لوگ کہتے ہیں یہ فاعل ہے یہ تو مبتدا ہے یہ تو بچپن کی باتیں ہیں کہ وہ جملہ وہ جس سے جملہ شروع ہوتا ہے اسے مبتدا کہیں گے فاعل کیسے کہیں گے نہیں بولیں گے پھر بھی نہیں بولیں گے یہاں پر فاعل ایک مصطلح ہے فاعل ایک مصطلح ہے اصطلاح ہے وہ آپ نہیں مطلب ایک ہی مصطلح آپ کو صحیح بولنا ہے ہاں تو ابھی فی الحال ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو آپ سے جب پوچھا جائے تو وہی بولنا ہے عام اور جان کی باتیں بالکل نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ مبتدا ہے اور اس میں جو ضمیر ہے یصلی میں وہ فاعل ہے
جی ہوا فاعل. تو قائلا جو حالت بیان کر رہا ہے وہ فاعل کی حالت ہے. ہاں کر سکتے ہیں اگر شک ہے جلدی کے بارے میں، جلدی کے بارے میں شک ہے تو تاکید کے لیے بولتے ہیں وہی نماز پڑھ رہے ہیں، دادا ہی نماز پڑھ رہے ہیں نانا نے، وہ تو مزید تاکید ہو جائے گی جلدی ہوا یصلی قاعدا. ہاں مزید تاکید پیدا ہو جائے گی اس میں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہے اس کا ضمیر کے ذکر کرنے. لیکن وہ بھی کر سکتے ہو، غلط نہیں ہوگا. جی جی وہ اگر لگا رہے تو وہ بھی. ہاں فی الحال آپ کی کتاب میں نہیں ہے، فی الحال آپ کی کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں آ جاتا ہے. ہاں ٹھیک. اچھا یہاں پر حال جو مثال آپ کو دی گئی ہے اس میں فاعل کی حالت بیان ہو رہی ہے، ہم مفعول کی حالت بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رأيت صديقين، رأيت صديقين مسرورين. اب دیکھیں یہاں پر رأيت صديقين مسرورين، یہاں پر آپ کنفیوز کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی آپ ترکیب کریں، کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ رأيت صديقين، دو خوش دوست کو میں نے دیکھا. جی دو خوش دوست. ہاں یہاں پر اب دیکھیں یہ منعوت ہے اور یہ نعت ہے نا. جی اب دیکھیں رأيت الصديقين مسرورين، وہ منعوت. یہاں پر یہ جو ہے یہ حال ہے. ٹھیک ہے یہ حال ہے اور یہ کس کی حالت ہے؟ مسرورین، صدیقین کی حالت ہے. مسرورن ہوگا پھر یہاں. مسرورن واحد، اگر صاحب الحال واحد ہو، جی صاحب الحال اس کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں جی جی انشاءاللہ، صاحب الحال اگر واحد ہو تو حال بھی واحد ہوگا. صاحب الحال اگر تثنیہ ہو تو حال بھی تثنیہ، صاحب الحال اگر جمع ہے تو حال بھی جمع ہو. ٹھیک ہے تو ابھی ان دونوں مثالوں کو آپ ذہن میں رکھیے، بس اتنا یاد رکھیے کہ حال کسے کہتے ہیں اور جس کی حالت بیان کی جاتی ہے اس کو صاحب الحال کہتے ہیں. حال فاعل کا بھی ذکر ہوتا ہے اور حالت اور مفعول کی بھی حالت ذکر ہوتی ہے. فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. رأيت الصديقين مسرورين، پہلے میں نے ال کو نکالا، ال کو نہیں رکھا تھا تو کیا ہو گیا تھا؟ منعوت نعت ہو گیا تھا، ہے نا. پھر میں نے اس کو معرفہ بنا دیا الصديقين مسرورين. فرق یہ ہوا صاحب الحال، صاحب الحال یہاں پر صاحب الحال معرفہ ہوتا ہے، صاحب الحال یہ معرفہ ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے. لا رأيته خاشعا، ماشاءاللہ کتنی بہترین مثال دیکھیے. یہاں پر بتائیے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر؟ مفعول کی حالت بیان. لا رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ہو واحد ہے اس لیے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. ٹھیک. اگر صاحب الحال تثنیہ ہو تو حال بھی تثنیہ لائیں گے، اگر وہ جمع ہو تو یہ بھی جمع لائیں گے. ٹھیک ہے فی الحال کے اتنا ہی یاد رکھیں. اس کے بعد ہے اچھا یہ بھی منصوب ہوتا ہے کیونکہ منصوبات کی لسٹ میں ہے. اسم كان، خبر كان، المفعول به، المفعول فيه، المفعول لأجله، المفعول معه، المفعول المطلق، الحال. اب ہم پڑھیں گے التمیز. التمیز بھی بالاختصار، تمیز کسے کہتے ہیں؟ اب آپ لوگ بولیں گے ادب کو بولتے ہیں، تمیز والا انسان ہے ادب والا انسان. ٹھیک ہے ممیز، بالکل الگ کرنا. میز یمیز کے معنی ہیں الگ کرنے کے. تو تمیز وہ اسم ہوتا ہے جو فرق بیان کرتا ہے یا جس کے ذریعے اس کو امتیاز حاصل ہوتا ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ مثلا ایک شخص، دو شخص ہیں دونوں میں صفتیں سیم ہیں، ایک صفت دونوں میں مشترک ہے. دو بندے ہیں دونوں میں ایک صفت مشترک ہے. مثلا میں کہوں کہ کامران صاحب یہ بھی لمبے ہیں، نسیم اختر یہ بھی لمبے ہیں، تو یہ لمبائی والی صفت دونوں کے اندر موجود ہے، لیکن دونوں میں الگ کرنے والے نہیں. عفواً وہ تو اس میں تفضیل کی بات کر رہا ہوں میں. وہ اس میں تفضیل ہے جو دونوں میں جو ہے الگ کرتی ہے کہ کامران اطول ہو گئے، کیا نام ہے ان کا، من نسیم. کامران اطول من نسیم یہ اس میں تفضیل ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں یہ جو تمیز بیان کی جا رہی ہے آپ کی یہاں اس کتاب میں،
ये तमीज है बस। इसमें तफदील की भी तमीज होती है, इसमें तफदील की तमीज होती है कि अना अकबर मिनका सिन्नन, वही बात है कि बड़े दोनों भी हैं लेकिन वो बड़े, लेकिन हाँ किस चीज में कौन किससे बड़ा है, ठीक है, कौन किसी में ओहदे में बड़े हैं आप, उम्र में बड़े हैं, अखलाक में आप बड़े हैं, किस चीज में इंसान किससे बड़ा है, तो ये फर्क करने वाली चीज ये तमीज कहलाती है और ये भी मंसूब होती है, ठीक, ये भी मंसूब होती है। जी जी हाँ, इसमें तफदील में हमने पढ़ा था अना अकबर मिनका, अना अकबर मिनका, लेकिन तमीज किसे कहते हैं जी, वो इस्म तमीज किसे कहते हैं, वो इस्म जो कि इसमें तब्दील है, दो बंदों के अंदर मुश्तरक सिफत पाई जाती है, जैसे अभी यहाँ पर जिक्र हुआ कि अंत अकबर वो हुआ अकबर, आप भी बड़े हैं और वो भी बड़े हैं, लेकिन कौन किसमें किस चीज से बड़ा है, ठीक है, कौन किस चीज में, तो ये जो किस चीज, हाँ कौन सी जो चीज जिक्र की जा रही है, फर्क करने वाली जो चीज है वो तमीज है, फर्क करने वाली जो चीज है वो तमीज है, यानी सिन में, ओहदे हाँ में, सिन में, ओहदे में, अखलाक में, इल्म में, अच्छा ये किसमें। हाँ फिलहाल आपके सबक में इसमें तब्दील के साथ आएगा, वरना इसकी भी और तफसील है, और तफसील इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आप लोग इतने याद रखें, ठीक है, और इतना याद रखें कि ये भी मंसूब होता है, ठीक है, इतना याद रखें कि ये भी मंसूब होता है, वरना इसकी भी काफी तफसील है। उसके बाद हम चलते हैं मुसन्ना की तरफ, मुस्तस्ना की तरफ। मुस्तस्ना भी मंसूब होता है। उसके बाद है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना किसे कहते हैं? इस्तिस्ना इल्ला, अलमुस्तस्ना, अलमुस्तस्ना किसे कहते हैं? इस्तिस्ना करने के लिए, अलग करना। इस्तस्ना यस्तस्नी के माने अलग करना, इस्तस्ना यस्तस्नी अलग करना। यहाँ पर आपके पास जो मिसाल दी गई ना, बस इस मिसाल को समझिए आप लोग, मजीद उसकी तफसील में अभी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं। हज़रत तुल्लाबु कुल्लुहुम इल्ला हामिदन, और करें इल्ला, हालांकि जाहिर में देखने से आपको लग रहा है कि ये फाइल है जी, कैसे लग रहा है फाइल है, मैं बोल दिया तो सही बोल दिया आपने। नहीं जानती फाइल, अरे उसने वो हाजिर ही नहीं हुआ तो फाइल कैसे हुआ? हज़रत तुल्लाबु कुल्लुहुम इल्ला हामिदन, इल्ला हामिदन, तमाम तलबा हाजिर हो गए सिवाय हामिद हामिद के। इसकी भी कुरान के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये मुस्तस्ना है, यानी अलग कर दिया गया है, इसको अलग कर दिया। किससे अलग किया गया होता है? उनसे, उन तुल्लाब से, तुल्लाब से, फाइल से, फाइल से अलग किया गया है, तुल्लाब, बिल्कुल। तो उसको क्या बोलेंगे? जिनसे अलग किया गया है, जिस इस्म से उसको अलग किया गया उसको कहते हैं मुस्तस्ना मिन्हु, मुस्तस्ना मिन्हु उससे जी, जिस इस्म से अलग किया गया है, हाँ मुस्तस्ना है, और ये मुस्तस्ना मिन्हु है। ये वो फाइल नहीं है, जी जी फाइल, वो फाइल नहीं है, हाँ, लेकिन वहां पर अब क्या बोलेंगे? जब इल्ला अदात इस्तिस्ना, और इल्ला को हम बोलते हैं अदात इस्तिस्ना, इस्तिस्ना। वो तो अदात इस्तिस्ना को आप देखेंगे तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि हामिद फाइल को जो कहेंगे है, मुस्तस्ना है, हाँ हामिद मुस्तस्ना, और ये मुस्तस्ना मिन्हु। कुल्लुहुम अगर हटा दें तो फिर भी ऐसे ही रहेगा। हाँ फिर भी ऐसे रहेगा, हज़रत तुल्लाबु इल्ला हामिदन। उसके बाद है अलमुनादा। अलमुनादा में खासतौर पर मुनादा मुफरद नहीं बल्कि मुनादा अगर मुरक्कब इदाफी हो तो मंसूब होता है। ये तो आप लोग कई मरतबा जिंदगी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ बस पहला मुजाफ मुजाफ मुजाफ, मुदाफ, ठीक है अब्दुल्लाह। अब जरा सा जल्दी जल्दी बता दें आप लोग कि मरफूआत अस्मा कौन कौन से हैं? मरफूआत, हाँ बस बताएं, बस बताएं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बताएं बताएं। इसमें काना की खबर, इन्ना की खबर, फाइल नाइब फाइल, जी मुनादा मुफरद। उसके बाद मंसूबात बताएं। इसमें इन्ना खबर काना, मफऊल बिही, मफऊल बिही,
المفعول الأجل، المفعول معه، المفعول المطلق، الحال، المستثنى. माशाल्लाह मैं भी खुश हो गया, बोला नसीब को ऐसे कैसे याद हो गया, बिल्कुल तेजी से बता रहे थे तो देख के पूरी तेजी से पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, देख के भी आप लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया। अभी हम दाखिल हो रहे हैं मजरूरात में। मजरूरात में दो ही हैं और ये भी हम अब तक की जिंदगी में कई मरतबा पढ़ चुके हैं। अल-मुदाफ इलैह मजरूर होता है और अल-मस्बूक बिहर्फ जर्र। अल-मस्बूक बिहर्फ जर्र क्या मतलब? इससे पहले हर्फ जर, बस उसको क्या करना है? मसबूक साबिक से जी सबका से, सबका सबका से। चलिए ये तो हो गया। अब उसके बाद आइए क्या, पीछे नहीं पैरवी करना, ताबिऊन इत्तिबा करने वाला, पैरवी करने वाला, फॉलो करने वाला। अत्तबाबिऊ पढ़े, कोई पढ़े आपने से इबारत? ताबिऊ देखें, ताबे किसे कहते हैं? अल-इस्मुल मुशारिक लिमा क़ब्लहु फी इअराबिही मुतलक़न। एक चीज में अपने पहले वाले इस्म के हुक्म में मुशारिक होता है, यानी एक चीज में, और वह इअराब। वरना कई अस्मा यहाँ पर ऐसे हैं जो और भी चीजों में अपने पिछले इस्म के वो ताबे होते हैं, मतलब एक ही उनका हुक्म इनका हुक्म सेम होता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एराब का जिक्र किया, वो इसलिए कि एराब में तकरीबन तमाम ही तवाबे अपने पहले वाले इस्म के ताबे होते हैं, अपने पहले वाले। जैसे हमने ये पढ़ लिया नात के मुताबिक, कह रहे हैं कि वो वाला नात के मुताबिक हमने पढ़ लिया कि वो मनोत के ताबे होता है, लेकिन चार चीजों में ताबे होता है, आदत में, जिन्स में, एराब में और तारीफ और तनकीर में। और इसी तरह तौकीद, तौकीद के मुतालिक शायद हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तौकीद अरबी ज़बान में तौकीद के लिए दो उसलूब हैं, दो तरीके हैं, मुख्तसर याद रखें, पूरी तफसील में भी यहाँ भी नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ नहीं बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे, इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि एक होता है अरबी में ताकीद पैन, उर्दू का अंदाज है बिल्कुल, बल्कि ये समझिए कि उर्दू वालों ने अरबी का अंदाज लिया है, अगर हम उर्दू को अरबी के बाद की जबान समझते हैं। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, कितना मतलब क्या समझा आपने? बहुत मारा, बहुत मारा। तो मैंने क्या उसलूब अपनाया? कितना कितना नहीं, कितना 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 नहीं, तकरार की, जुमले की तकरार की। मैंने ऐसा खाया, ऐसा खाया, ऐसा खाया, जुमले की तकरार। तो एक तो उसलूब ये है अरबी में भी कि जुमले की तकरार। कैसे क्या? अकल तो अकल अकल ऐसे कर। हाँ, अकल तो अकल तो अकल तो अकल तो, नाम नाम, अकल नाम नाम, सुना होगा आपने है ना, जब है नहीं खाया, नाम नाम ताकीद के लिए, हाँ भाई खा लिया। तीन बार भी आता है। हाँ 3 बार भी आता है, जितनी ताकीद लाना चाहते हो उसके बाद आप ला जितने बार लगे खाया, ठीक है। 2 बार 3 बार नहीं, 3 कोई हद मुकर्रर नहीं है उसकी, जितनी आप ताकीद लाना चाहते हैं अपनी इस बात में उतना आप रिपीट करेंगे, तकरार करेंगे, ठीक है, उतनी आप तकरार करेंगे। मसलन कोई आपको मुजरिम समझ रहा है, ठीक, और आपको पकड़ रहा है, तो आप एक बार बोल के तो खामोश नहीं हो जाएंगे, भाई मैंने ये जुर्म नहीं किया, क्या करेंगे आप? नहीं, आप बोलते रहेंगे, बार बार बोलेंगे। क्यों बोलना चाहते हैं आप? क्योंकि आप पूरी ताकीद लाना चाहते हैं उसके अंदर कि मैंने जुर्म नहीं किया है, मैंने जुर्म नहीं किया है। कितने बार बोला मैंने जुर्म नहीं किया है, बोलते जाते हैं आप, यानी उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। तो अरबी में भी बिल्कुल इसी तरह है कि आप जुमले, मतलब कोई भी जुमला ले लें कि हादा दफ्तर तालिब अल-जदीद, हादा दफ्तर तालिब अल-जदीद, हादा दफ्तर तालिब अल-जदीद, मतलब ये है कि पहला जो जुमला होगा उसको मुअक्कद कहेंगे, जिस दूसरा जुमला उसकी ताकीद बयान कर रहा है। हादा दफ्तर तालिब, हालांकि ये दूसरों की मिसाल है, लेकिन कोई भी मिसाल ले सकते हैं इसमें आप। हादा दफ्तर तालिब अल-जदीद असल जुमला है आपका, असल बात है, आप इस बात की ताकीद बयान करना चाहते हैं, तो बोले हादा दफ्तर तालिब अल-जदीद, हादा दफ्तर तालिब अल-जदीद, 2 मरतबा आपने जिक्र किया। तो पहला जो जुमला है वो असल है ना, और दूसरा जो पहला जो जुमला है वो असल है, तो उसको कहते हैं मुअक्कद, जिसकी ताकीद बयान की जा रही है, और जो दूसरा जुमला है वो तौकीद है, वो ताकीद का है।
تو पहले जुमले का जो एराब होगा दूसरे का वही एराब होगा। ये है ताबे, ये तौकीद ये ताबे है, तौकीद ताबे है। किसके ताबे हैं? मुअक्कद के ताबे हैं। तौकीद मुअक्कद के ताबे हैं, यानी तौकीद का एराब मुअक्कद का एराब होगा। जिसकी ताकीद बयान की जा रही है उसका एराब तौकीद का एराब होगा। जुमला भी हो सकता है, इसम भी हो सकता है। मसलन अकल हामिदुन, अकल हामिद, नअम अकल हामिदुन, नअम हामिदुन, नअम हामिदुन। आप जितने बार आप बोल रहे हैं ये सारे तौकीद के लिए हैं। हामिदुन 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 ही कहा आपने। नसरत ज़ैदन, नअम नसरतु ज़ैदन, ज़ैदन नअम ज़ैदन, नअम ज़ैदन। तो आप तकरार कर रहे हैं और वो मंसूब भी जिक्र करेंगे कि मफ़ऊल है और मुअक्कद मफ़ऊल है और मंसूब है, इसीलिए ताकीद भी मंसूब है। समझते हो? जी समझना। ठीक है, हाँ आसान है ये, मुख्तसर मैंने बताया आसान है, वरना ये तो इसके अलावा भी तौकीद के और भी तरीके हैं और भी कुछ अल्फाज हैं जो तौकीद के लिए लाए जाते हैं। नफ्स है, आयन है और क्या है, कुल है, इस तरह के और भी अल्फाज हैं। इंशाअल्लाह आगे तफसील आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना याद रख लें कि तौकीद मुअक्कद के ताबे है, ताकीद मुअक्कद के ताबे है एराब में। ठीक है, जैसे कुल की मिसाल गुजर गई इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। हदरतुल्लाहु कुल्लु कहा आपने, कुल्लु क्यों कहा? कुल्लु ये लफ्ज़ तौकीद है, तौकीद का लफ्ज है कुल। तो उसको जो कुल्लु रफा आपने दिया, किस लिए आपने रफा दिया जी? तुल्लाबु की वजह से। अब तुल्लाबु को रफा मिला है, तुल्लाबु मुअक्कद है, इसीलिए कुल्लु को रफा दिया गया। अब तुल्लाबु कुल्लुहुम, हदरतुल्लाबु कुल्लुहुम, रअयतु तुल्लाब कुल्लहुम, बारकल्लाहु फीकुम, रअयतु तुल्लाब कुल्लहुम, कुल्लहुम। तो कुल्ला को नसब क्यों दिया मैंने? क्योंकि मुअक्कद मंसूब है तो तौकीद भी मंसूब होगी। लिखा हुआ है देखें, हदरतुल्लाबु कुल्लु, ये एराब पे गौर करें। हदरतुल्लाबु कुल्लुहुम, मैंने कहा रअयतु तुल्लाब कुल्लहुम, जी कुल्ला। यहां देखिए, यहां पर कुल्लु और यहां कुल्ला, क्यों? फाइल की तुलना की वजह से वहां पे। हाँ, यहाँ पर ये कुल लफ्ज़ कुल ये तौकीद है, तौकीद के लिए लफ्ज़ कुल तौकीद के लिए है। तो यहाँ लफ्ज़ कुल मरफू है इसलिए कि मुअक्कद मरफू है, जिसकी ताकीद बयान की जा रही है वो मरफू है। यहाँ लफ्ज़ कुल मंसूब है और जिसकी ताकीद बयान की जा रही है वो भी मंसूब है। अगर सल्लम तो अलत तुल्लाबी कुल्लिहिम, बिल्कुल इसी तरह। ठीक, तो तौकीद ताबे हैं अपने मुअक्कद के। किस चीज में? एराब। इतना याद रखिएगा। फिलहाल इतना याद रख लें। फिलहाल जितना नहीं, उसमें कुल का मैंने थोड़ा सा बता दिया, फिलहाल इतना काफी है। नहीं सिर्फ लफ्ज़ कुल नहीं और भी हैं, फिलहाल इतना काफी है। जी जी हाँ लिख लीजिए, तो हो गया ना। और क्या था इसमें? कहाँ है? अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पर मज़कूर है इधर। अच्छा चले, यहाँ पे इन्होंने जिक्र कर दिया। वैसे कुछ और भी कलिमात हैं जैसे नफ्स है, आयन है, ये अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क़ाल ली हाज़ल मुदीरु नफ्सुहु, मुदीर ही ने कहा मुझसे। तो नफ्सुहु लफ्ज़ नफ्स तौकीद के लिए लाया गया है, लफ्ज़ नफ्स तौकीद के लिए लाया गया है। तो आप देखिए क़ाल ली हाज़ल मुदीरु नफ्सुहु, किसकी तौकीद है ये? मुदीर की तौकीद है। मुदीर मरफू है इसीलिए इसको भी रफा दिया गया। ठीक है, अब दूसरा आप इसको मफूल बना दें। अच्छा यहाँ पर है सअलतुल मुदीरा
नफ्सहु, सअलतुल मुदीरा नफ्सहु। यहाँ पर मुदीर मुअक्कद मंसूब है, इसीलिए ताकीद की मंसूब है। सल्लमतु अलल मुदीरी नफ्सी। और इसी तरह लफ्ज़ आइन को भी लगा सकते हैं। लफ्ज़ आइन भी ताकीद के लिए आता है कि क़ाल लिहाज़ल मुदीर ऐनुहु, तो उसके माने भी वही है कि मुदीर ही ने मुझसे कहा। नहीं, सअलतुल मुदीरा। हाँ, फर्क होगा। बारकल्लाहु फीक, अच्छी चीज याद दिलाई आपने। अगर यहाँ पर सअलतुल मुदीरा नहीं, नफ्सुहु तो आएगा ही नहीं, वहां पर ये आएगा सअलतुल मुदीरा नफ्सी, ऐसे आएगा। तो वहां पर क्या होगा, किसके हालत है वो, कौन मुअक्कद है? खुद। हाँ, खुद सअल लिखूं सअलतुल मुदीरा, यहाँ देखें एक तो नफ्सहु है, ठीक है, और दूसरा था सअलतुल मुदीरा नफ्सी। तो ये किसकी ताकीद है? मैंने पूछा उससे मुदीर। तो किसकी ताकीद है? अपनी। हाँ मैंने खुद मुदीर से जी, तू फाइल की, तू दमीर फाइल है, यहाँ पर दमीर मुत्तसिल है, ये दमीर फाइल उसकी तौकीद है। तो यहाँ उस वक्त हम क्या कहेंगे, ये मरफू है या मंसूब है या मजरूर है? मरफू है क्योंकि फाइल की तौकीद है, और यहाँ पर मंसूब है नफ्सहु, इसलिए कि मफऊल की तौकीद है। मैंने खुद मुदीर से पूछा, सअलतुल मुदीरा नफ्सी, मतलब मैंने खुद मुदीर से पूछा। यहाँ तर्जुमा ऐसा नहीं करना मैंने मुदीर से अपने दिल के बारे में पूछा, ऐसा नहीं है। क्या क्या? हाँ ठीक है, हाँ मतलब मुदीर ही से तुमने पूछा, ठीक। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर अंता की या फिर ता की जो है ना ताकीद लाना है, चले अब बताएं। माशाल्लाह दिमाग खुल रहा है आप लोगों का, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा शौक हो रहा है। हाँ, सअलतुल मुदीरा नफ्स, इसकी जो है ना इसकी ताकीद लाएंगे। सअलतुल मुदीरा नफ्सहु, नफ्सहु क्यों होगा? नफ्सहु होगा। जी, तो मैं कह रहा हूँ इसकी ताकीद लाएं बस। नफ्सु का फाइल की ताकीद ला रहे हैं, तो मरफू होगा। नफ्स का नहीं, नफ्सहु नहीं, नफ्सु का। सअलतुल मुदीरा नफ्सु का मतलब है कि क्या तुमने ही सवाल किया मुदीर से। समझ रहे हैं आप लोग? माशाअल्लाह, शुक्र है। इसके बाद सल्लम तो हो गया, यहाँ पर सब मिसालें हैं। यहाँ टाइम क्या हो रहा है? अज़ान हो गई। चलिए फिलहाल काफी है, इतना काफी है। बस इंशाल्लाह हम लोग आज और बदल वगैरह इंशाल्लाह